Hello students, today I am going to discuss human digestive system. Human digestive system consists of two main parts, alimentary canal and digestive glands. Alimentary canal have following parts: mouth cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anus. And the second part is digestive glands. Digestive glands consist of three types of glands: salivary glands, liver, and pancreas. Actually, human beings are holozoic. Our nutrition mode is holozoic. We take solid food, and that food is digested by the help of enzymes secreted by these glands. And finally, digested food is absorbed by small intestine and reached to blood, and through blood transported throughout the body. Now we will discuss about human digestive system in detail. The first part of alimentary canal is mouth cavity. Mouth cavity is also known as oral cavity or buccal cavity. Consists of teeth and a muscular tongue. Mouth cavity have upper and lower two jaw bones, and number of teeth are fixed in these jaw bones. Teeth are fixed in socket so that our teeth is known as thecodont. थीको इट मीन्स सॉकेट्स में धसा हुआ रहता है. नाउ इन ह्यूमन लाइफ टाइम 2 टाइम्स टीथ अपीयर. 2 तरह के दांत होते हैं हमारे लाइफ टाइम में. वन इज टेम्पोररी मिल्क टीथ, अनदर वन इज परमानेंट टीथ. सो वी आर नोन एज डाइफाइवडोंट. Now, adult human beings have 4 type of teeth: incisor, canine, premolars, molars, and hence they are known as heterodont. The dental formula of an adult human is given in this slide: 2:1:3 ratio. It means 2 incisors, 1 canine, 2 premolars, 2 molars on each side of each jaw. In upper jaw 16, in lower jaw 16. Total teeth are 32. Out of these 32, 4 last molars are known as wisdom. जो थोड़ा एज होने के बाद, मैच्योर होने के बाद ये दांत साइड में, अपर और लोअर साइड में आते हैं, उनको हम कहते हैं विजडम टीथ. नाउ टंग इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट इज सिचुएटेड between these teeth. It is joined with the palate on posterior side. नीचे की तरफ तालू से जुड़ा हुआ होता है posterior side में. And it has number of taste buds. And these taste buds are responsible to catch the taste. इनसे हमको खट्टा मीठा तीता दांत टेस्ट पता चलता है. Now teeth and tongue, these both have a very specific role in mastication of food. फूड को चबाने, काटने और मिक्स करने में इनका बहुत रोल है. सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद भोजन जो है वह सॉफ्ट हो जाता है, and then it can pass easily through the pharynx. The movement of food through the pharynx is called swallowing. Now there is tongue with different taste buds, and there is a figure of human teeth. Human teeth has 3 parts. Upper white part जो दिखाई देता है that is crown. The middle part is neck, and the lower part root, which is fixed inside the sockets. The upper crown is made up of enamel and outer surface, and inner surface is made up of hard dentine. Now we will see about the other parts of alimentary canal. Oral cavity leads to a funnel shaped structure that is called pharynx. Pharynx is a common passage for windpipe and food pipe. And there is a cartilaginous flap which prevents the entry of food in the विंड पाइप. यानी जब हम खाना खाते हैं तो भोजन सांस की नली में ना चला जाए, इसके लिए एक इपिग्लॉटिस होता है जो सांस की नली को ऊपर से ढक देता है और भोजन को सांस की नली में जाने से रोकता है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ईसोफेगस. ईसोफेगस जो फैरिंग से स्टार्ट होता है और स्टोमक तक भोजन को ले जाने का काम करता है. इट पासेस थ्रू नेक, थोरैक्स, डायफ्राम एंड रीचेस टू द स्टोमक. अब ईसोफेगस की दीवार फैलती और सिकुड़ती है. ड्यू टू रेगुलर एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन द वॉल ऑफ ईसोफेगस फूड पुशेस टू of the food through this esophagus is known as peristalsis movement. हमारा जो भोजन इसोफेगस से पास होता है उस मूवमेंट को हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं.
Now we will see about another important part, that is stomach. Stomach is a J-shaped bag-like structure. It is situated in abdominal cavity below the diaphragm. Diaphragm के नीचे abdominal cavity में stomach पाया जाता है. इसके 3 parts हैं. Upper part towards the heart is called cardiac part. हृदय की तरफ जो पार्ट है वह कार्डियक पार्ट कहलाता है और नीचे की तरफ का पार्ट कहलाता है फंडिंग पार्ट. बीच के पार्ट को हम कहते हैं पाइलोरिक पार्ट. इन दिस वे स्टोमक is divided into 3 parts. The inner layer of the stomach, it means the wall of stomach, that is made up of mucosa, some mucosa, and this mucosa have number of gastric glands. These gastric glands secretes gastric juice. Gastric juice has very important role in digestion of food in human body. It consists of 3 main components, that is HCl, mucus and pepsinogen. HCl converts pepsinogen into pepsin. HCl kills microbes which enters through our mouth. मुंह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के स्टोमक के अंदर आते हैं उनको HCl मारता है और साथ ही साथ पेप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है. पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है. पेप्सिन को में बदलने के बाद वह प्रोटीन का डाइजेशन करता है, इसलिए हमारे स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है. इसके बाद हमारे माउथ कैविटी में, जो मैं बताना भूल गई आपको, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं 3 जिनसे सलाइवा आता है और उन सलाइवा से में एक इम्पॉर्टेंट स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, दैट इज़ कॉल्ड टाइलिन. तो हमारे माउथ कैविटी से में केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू होता है और स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है. नाउ म्यूकस जो कि हमारे स्टोमक के वॉल को एसिड से बचाता है और मॉइस्ट रखने का काम करता है. इसके अलावा छोटे बच्चों में जो दूध पीते हैं रेनिन पाया जाता है. हम उनके स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस में रेनिन पाया जाता है जो मिल्क में पाए जाने वाले कैसिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है. अब हमारा भोजन पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ दी लार्जेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा भाग है. इट इज़ नैरो क्वाइल ट्यूबुलर पार्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 पार्ट्स, यू शेप्ड डिओडेनम, जेजनम मिडिल पार्ट एंड लास्ट क्वाइल ट्यूबुलर पार्ट दैट इज कॉल्ड इलियम. डिओडेनम इज ए यू शेप्ड पार्ट है एंड डिओडेनम के पास लीवर और पैनक्रियाज इन 2 इंपॉर्टेंट ग्लैंड से कॉमन डक्ट निकलता है जिसे हम कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं. द बाइल जूस एंड द पैनक्रियाटिक जूस रीचेस टू डिओडेनम. बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस दोनों डिओडेनम में आता है थ्रू कॉमन डक्ट दैट इज कॉल्ड हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट. और बाइल जूस में बाइकार्बोनेट होता है जो कि फूड को अल्कलाइन बनाता है. साथ ही साथ बाइल जूस फूड का इमल्सिफिकेशन करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है. इमल्सिफिकेशन का मतलब फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना ताकि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए और एंजाइम उस पर अच्छी तरह से काम कर सके. पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आता है. इसमें भी कई इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जैसे ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, एमाइलेज जो स्टार्च का डाइजेशन करता है, बाइकार्बोनेट आयंस भी पाए जाते हैं इस पैनक्रियाटिक जूस में जो फूड को अल्कलाइन मीडियम कन्वर्ट कर देते हैं. साथ ही साथ यहाँ लाइपेज भी पाया जाता है जो फैट का डाइजेशन करता है. इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम के बाद हमारा भोजन पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजनम में. इस फिगर में आप डिओडेनम, जेजनम एंड इलियम तीनों पार्ट देख रहे हैं. जेजनम के पास कोई एंजाइम नहीं है. जेजनम केवल बीच का एक पार्ट है जो कि वो दोनों पार्ट को जोड़ता है डिओडेनम और इलियम को. इलियम लंबा क्वाइल ट्यूबुलर पार्ट है जिसके इनर वॉल में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं जिससे इंटेस्टाइनल जूस निकलता है. उस जूस को हम सक्कस एंटेरिकस कहते हैं और इस जूस में भी कई एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं. इलियम में पहुँचते पहुँचते भोजन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है. प्रोटीन is converted into amino acids. Fat is converted into fatty acid and glycerol. And carbohydrate is converted into glucose. In this way, solid, insoluble food is converted into soluble, simple form. It means digestion is completed.
Now, inner wall of the small intestine, it means ileum, have number of finger-like projections, and these finger-like projections are known as villi. These villi are richly supplied by blood capillaries. They increase surface area for absorption of digested food, because maximum digested food is absorbed in the small intestine and mainly. These villi are richly supplied by blood capillaries, so digested food after absorption reaches to different parts of the body by the blood. In this slide, you can see the एनाटोमी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकोजा, सब म्यूकोजा आदि लेयर्स हैं, और इसके सबसे बाहर की तरफ म्यूकोजा सरफेस पर नंबर ऑफ विलाई हैं, और इन विलाई के अंदर लिम्फ वेसल्स तथा ब्लड कैपिलरीज भरे हुए हैं. इनका काम है एब्जॉर्प्शन करके भोजन को आगे बढ़ाना. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन इज अनदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, बट इट इज शॉर्ट एंड वाइडर. ये छोटा लेकिन चौड़ा होता है. लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे अपर पार्ट सीकम, जिसको हम ब्लाइंड सैक भी कहते हैं, यह असल में जहाँ इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन जुटता है वह पोर्शन है, और यह जो कि डायरेक्ट कच्चा प्लांट्स खाते हैं उनमें सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस भाग में पाए जाते हैं, जो कि उसका डाइजेशन करते हैं सेल्यूलोज का. लेकिन हम लोग पकाकर खाना खाते हैं तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है. इसी जगह एक फिंगर लाइक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं अपेंडिक्स. अब हमारे बॉडी में अपेंडिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम कच्चा खाना नहीं खाते. लेकिन कभी कभी यह अपेंडिक्स जो कि छोटा सा हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में, अवशेषी अंग के रूप में प्रेजेंट है, बड़ा हो जाता है तो इसे निकालना पड़ता है. नेक्स्ट पार्ट है कोलोन. कोलोन इज असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स कोलोन. असेंडिंग जो ऊपर की तरफ जा रहा है, डिसेंडिंग नीचे की तरफ आ रहा है, और बीच का पार्ट कोलोन, दैट इज ट्रांसवर्स कोलोन. द कोलोन से मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है जब फूड पास करता है. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज रेक्टम. रेक्टम इज लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब एंड इट कलेक्ट्स अनडाइजेस्टेड फूड इन फॉर्म ऑफ फिशेस. यानी डाइजेशन खत्म हो गया, अब रेक्टम में जितना बचा हुआ पानी है पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में फिशेस के रूप में, मल के रूप में जमा हो जाता है, जो टाइम टू टाइम बॉडी से इजेक्ट होता है थ्रू दी एनस. इजेक्टेड थ्रू दी एनस. इस तरीके से हमारे बॉडी में पूरे डाइजेशन का काम कंप्लीट होता है. देयर इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स कोलोन एंड रेक्टम. नाउ वी विल सी अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. हमने पहले बताया कि 3 मेन इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं. सलाइवरी ग्लैंड सबसे मुख्य है, जिसमें पहला सलाइवरी ग्लैंड. देयर आर 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड सिचुएटेड इन आवर बक्कल कैविटी. देयर नेम इज लाइक दैट: पैरोटिड्स, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल. पैरोटिड ग्लैंड्स हमारे कान के नीचे होता है, सब मैक्सिलरी हमारे जॉ बोन्स के नीचे, और सब लिंगुअल टंग के नीचे, और ये पेयर में होते हैं. एंड ये 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं ये सलाइवा निकालते हैं जो माउथ कैविटी में आता है, और सलाइवा में एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंजाइम है, दैट इज टाइलिन, जो सलाइवरी एमाइलेज कहलाता है. अर्थात यह हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है. फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन करता है, इसलिए माउथ कैविटी में केवल कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का डाइजेशन शुरू होता है. इसके बाद हम दूसरा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है लीवर. लीवर इज सिचुएटेड नियर डिओडेनम, एंड इसमें बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है, जो एक छोटे से ग्रीन कलर के गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता है. गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है और लीवर से भी डक्ट निकलती है, दोनों मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं, और बाद में ये पैनक्रियाज के डक्ट के साथ डिओडेनम में ओपन होता है. इसके बाद लीवर से बाइल का क्या फंक्शन है हम लोगों ने देख लिया था डिओडेनम के पास. अब हम बताएंगे पैनक्रियाज से पैनक्रेटिक जूस निकलता है, और वह भी कॉमन डक्ट के साथ पहुंचता है डिओडेनम में. इसमें 3 एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, और ये क्रमशः प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लाइपेज का डाइजेशन करते हैं. यह है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का फिगर, इसे आप देख लीजिए, और इसके बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसे आप देख लीजिएगा. Thanks.